آج پوری دنیا میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈنکا بج رہا ہے اور آمد رسول کے مہینے میں ہر عاشق رسول جھومتا گنگناتا گاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بتاؤں کہ یہ وہ گھڑی ہے، یہ مہینہ ہے، یہ وہ رات ہے جس میں رسول کی آمد ہو رہی تھی، پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ آئیے پیدائش نبی سننے سے پیش تک ہم اور آپ مل کر کے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ کی بڑی پیاری تھی، میں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، بڑی چاہت رکھتی تھی، کچھ ہی دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور، میں ماں ہوں، اس لیے اپنی بیٹی کی فرقت میں، اپنی بیٹی کی جدائی سے میں ہمیشہ مغموم رہتی ہوں اور یہ خواہش رکھتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو مرنے کے بعد دیکھوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ حضور کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میں اپنی بیٹی کو خواب کی حالت میں دیکھ سکوں۔ تو غور سے سنیے گا، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، اے خاتون گھر چلی جا اور جا کر کے 4 رکعت نماز نفل پڑھنا اور پھر بستر پر لیٹ جانا، بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز نفل پڑھنا اور پھر بستر پر لیٹ جانا، اور بستر پہ لیٹنے کے بعد لو لگانا مدینے والے آقا کی بارگاہ میں، تاہا یاسین کی بارگاہ میں، والضحیٰ چہرے والے کی بارگاہ میں، مازاغ آنکھ والے کی بارگاہ میں، واللیل زلف والے کی بارگاہ میں، کالی کملی والے کی بارگاہ میں، اور بے شمار درود پڑھنا، ایسا پڑھنا کہ پڑھتے پڑھتے تمہیں نیند آ جائے، انشاءاللہ تمہاری لڑکی تمہارے خواب میں نظر آ جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے جب طریقہ بتایا، وہ خاتون گھر واپس ہوتی ہے اور جس طرح بتایا تھا آپ نے ٹھیک بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے، بستر پر لیٹ جاتی ہے اور بستر پہ لیٹنے کے بعد لو لگاتی ہے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں، ملجا ماوا داتا کی بارگاہ میں۔ اس قدر پیار کرتی تھی، جس بیٹی سے اس قدر محبت کرتی تھی، اس پہ عذاب و عقوبت نازل ہو رہا ہے، اس کے جسم پہ تارکون کا لباس ہے، اس کے ہاتھ رسیوں سے بدھے ہوئے ہیں، اس کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ ماں نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، بے قراری اور بے چینی کے عالم میں ایک کربناک چیخ مار کر کے بستر پہ بیٹھ جاتی ہے، رات کسی طرح گزارتی ہے اور گزارنے کے بعد جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، سورج کی نورانی شعاعیں زمین پہ بکھرنا شروع ہوتی ہے کہ بے قرار ماں، بے چین ماں بھاگے بھاگے حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچی ہے۔ حضور، جو آپ نے طریقہ بتایا تھا، جو آپ نے عمل بتایا تھا، میں نے اس پر عمل پیرا ہوا۔ حضور، میں نے خواب بھی دیکھا، اپنی بیٹی کو بھی دیکھا۔ حضور، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی پہ عذاب و عقوبت نازل ہو رہا ہے، اس کے جسم پہ تارکون کا لباس ہے، اس کے ہاتھ رسیوں سے بدھے ہوئے ہیں، اس کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور، میں ماں ہوں، اس لیے اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اب کوئی اور طریقہ بتا دیجئے، اور کوئی طریقہ بتا دیجئے جس سے میری بیٹی سے عذاب دور ہو جائے۔ تو اے اسلامی شہزادوں سننا، حضرت خواجہ حسن بصری نے کچھ اور نہیں کہا تھا، بلکہ ایک جملہ کہا تھا، اے خاتون گھر چلی جا اور جا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دینا، ممکن ہے اللہ جو ہے عذاب کو دور۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا، یہ خاتون گھر چلی جا اور اللہ کے راہ میں صدقہ کر دینا، ممکن ہے اللہ عذاب کو دور فرما دے۔ اب سنیے، لفظ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، لفظ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت لوگ جان جائے تو آئے دین صدقہ کرے، نہیں ہے جو موت کو روک سکے، مگر قربان جاؤ یہ لفظ صدقہ جس سے آپ ڈر کر کے دروازے بند
कर लिया करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों सुनो कि सदका जारिया एक ऐसी चीज है जो आई हुई मौत को भी कुछ लम्हे के लिए रोक देती है। आई हुई मौत भी कुछ लम्हे के लिए रोक दिया करती है। हजरात मुख्तसर सा वक्त में, वरना मैं सदक़े लफ्ज़े सदक़े जारिया पर भी मैं घंटों तकरीर किया करता हूँ। बस आइए सुनिए, हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, ये खातून घर चली जा, अल्लाह के राह में सदका कर देना, मुमकिन है अल्लाह ताला उस अजाब को दूर फरमा दे। वो खातून घर वापस होती है, दिन गुजरता है, रात की तारीकी पूरी दुनिया पे जब छाने लगती है, लोग अपने अपने जो है कामों से फारिग हो करके, इबादत और रियाजत से फारिग होकर के बिस्तर इस्तराहत पे आराम करने जा रहे हैं। दिन भर जो है अपने रिज्क के तलाश में घूमने वाले सहराओं और जंगलों को वो जो है परिंदे तायराने खुशनवा अपने घोंसले में जाकर के आराम के जो है आराम की नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया खरगोश की नींद सो रही है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी इबादत और रियाजत के बाद अपने बिस्तर पे सोते हैं और फिर बिस्तर पे जैसे ही सोते हैं अचानक नींद लगती है। आपने खुद एक सुनहरा ख्वाब देखा। क्या देखा? एक हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान लड़की है, एक अजीम शान तख्त पे बैठी है, मुस्कुराते जा रही है, कहते जा रही है, ए ख्वाजा हसन बसरी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने देखा, उसके सर पे ताज ज़र्री रखा हुआ है, जिसकी टोपी से, जिसके ताज से जो है जश्न मिलादुन नबी मौलाना शहनवाज चतुर्वेदी नारे तकबीर नारे की निगाहों से देख रहे हैं कि हजरत बिस्तर पे सोते हैं। आपने ख्वाब देखा, एक हसीनो जमील लड़की खूबसूरत नौजवान एक अजीम शान तख्त पे बैठी हुई है, जिसके सर पे ताजे ज़र्री रखा हुआ है, जिसके जिस्म पे जन्नती लिबास है, जो जन्नती नेमतों से सरफराज हो रही है और मुस्कुरा के कह रही है, ए ख्वाजा हसन बसरी, आप क्या मुझे पहचानते हैं? हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कहा, मैं उस खातून की बेटी हूँ जिस खातून ने मुझे ख्वाब में देखने के लिए आपसे तरीका पूछा था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी बोल पड़ते हैं, ए बेटी, मगर तेरी माँ कह रही थी कि वो ख्वाब में तुझ पे अजाब होता हुआ देख रही थी, कि तेरे जिस्म पे तारकुल का लिबास था, तेरे हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे, तेरे पैरों में जंजीरें पड़ी थी। मैं तो उसका उल्टा देख रहा हूँ, उसका बरअक्स देख रहा हूँ कि तेरे जिस्म पे बजाय जो है तारकुल के लिबास के जन्नती लिबास है, तेरे हाथ जंजीरों में बंधे हुए के बजाय तेरे हाथ रस्सियों से बंधे हुए के तेरे हाथ में जन्नती नेमतें हैं। मैं तो उसका उल्टा देख रहा हूँ। कहा, हुजूर, जिस तरह मेरी माँ ने कहा था ठीक वैसा ही था। सुनिए, आज ही दिन का वाक़या है। मेरी कब्रिस्तान से एक नेक इंसान का गुजर हो रहा था, गुजरता जा रहा था, दरूद पाक पढ़ता जा रहा था, गुजर रहा था, दरूद पाक पढ़ रहा था, गुजर गया, दरूद पाक पढ़ा। हुजूर, उसने दरूद पाक पढ़ा और दिल ही दिल में उस दरूद को अहले कब्रिस्तान के लिए इसाले सवाब कर दिया। हुजूर, उस कब्रिस्तान में सिर्फ मैं ही नहीं 70,000 मुर्दे दफन किए गए थे और अल्लाह ताला ने उस एक बार पढ़े हुए दरूद पाक की बरकत से सिर्फ मुझे ही नहीं 70,000 मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाई। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मौलाना असलम रज़ा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जो आका आखिरत में पहचान लेगा उस गुलाम का बेड़ा पार। हज़रात, अब जी लगा के दरूद पाक पढ़े तो मैं आगे बढ़ूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आपकी निगाहें बार बार हजरत अल्लामा शहनवाज चतुर्वेदी साहब की मिला पे पड़ रही है। मैं जान रहा हूँ और मैं यकीनन आप रात को मौका दूंगा कि अल्लाह गुंजो गुल को हर सू शबाब आ गया, आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया, जिसको पीकर कभी रिंद बहकते नहीं, मेरा साकी वो लेकर शराब आ गया।
नारा कब लगाइए, वक्त कब मिला है हमें। उन चौगुल को हर्षो शबाब आ गया, शुरू कर दिया। सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचों से ऊंचा। तो सुनो सुनो, ये सोचो, ये मेरे महबूब की आमद पे सिर्फ खुशी तुम ही नहीं मना रहे हो, जमीन की मखलूक ही नहीं मना रही है, बल्कि मुझे देख लो, मैं अपने पैगंबर को जब दुनिया में मबूस कर रहा हूँ, उस वक्त मैं भी खुशी मना रहा हूँ। ये खुशी रब मना रहा था, तुम्हें और हमें कैसे पता चलता? सुन, 12 रबीउन नूर को दिन सोमवार को सुबह सादिक के वक्त तकरीबन 4:20 के वक्त जो है मोहम्मद अरबी की आमद हो रही है। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, परिंदे खुशियां मना रहे हैं, जंगल के जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, समंदर की मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है। तायराने खुशनवा अपने अपने घोंसलों से निकल करके सेहरा की जानिब अपनी तोतली आवाज में रब की हम्दो सना करते हुए रिज़्क़ के तलाश में जा रहे हैं। और वक्त जो है जब सुबह सादिक का वक्त है, एक मखलूक खुदा में से बंदे खुदा है जो हुजूर के दादा रखते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, खाना काबा में इबादत और रियाजत कर रहे हैं, और जो ही अचानक खाना काबा का तवाफ शुरू करते हैं, क्या देखते हैं? आँख खुली की खुली रह गई, खाना काबा झुक जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच में पड़ जाते हैं, वल्लाह गरीबी का आलम है, ये खाना काबा गिर गया, अब तो ईंटें बिखर जाएगी, नीचे बिगड़ जाएगी, दीवारें टूट टूट करके रेजा रेजा हो जाएगी, अब खाने काबा की कैसे तामीर होगी? अभी इसी कशो मकश में थे कि आपके घर के लौंडे सुहैबिया ने आकर मुस्ता सुनाया, ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आपके घर में आपका पोता मोहम्मद अरबी पैदा हुआ है। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पुकारते हैं, ए खाने काबा के इर्द गिर्द में बसने वालों, ए खाने काबा के कुर्बो जवार में बसने वालों, ए खाने काबा के अतराफ में रहने वालों, अरे सुना, ये खाने काबा गिरा नहीं था, बल्कि मेरे पोते मोहम्मद अरबी की विलादत बासआदत पे सच है, सुभान हुआ था। इसलिए तब बरेली का इमाम पुकार उठा, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुसलमानों का किबला है, ये काबा कौन है? जो रब का खास खुदा का घर है। ये काबा कौन है? जिसकी ताजीम दुनिया के मुसलमान करते हैं, इज्जत वाला, अजमत वाला, औकार वाला, मर्तबा वाला, बुलंदी वाला खाने काबा है। वो खाने काबा नबी की आमद पे झुक कर करके दुनिया वालों को दर्श दे रहा है, दुनिया वालों को मैसेज दे रहा है और सबक दे रहा है। ए दुनिया में बसने वाले इंसान, सुन, तुम दुनिया में रहना, नबी के सदके में बनी हुई जमीन पे चलना, नबी के सदके में बने हुए आसमान के शामियाने तले रहना, नबी के सदके में मिली हुई चीजों को लेना देना। मगर सुनो, मुझे देखो, मैं खाने काबा हूँ, नबी जो 12 रबीउन नूर को आ रहा है, कोई आम बच्चा नहीं जो आमिना के आंगन में लाल आ रहा है, कोई आम लाल नहीं है। सुनो, यही इमामुल अंबिया है, महबूब परवरदिगार है, ताहा वो यासीन है, मुज़म्मिल व मुदस्सिर है, यही जो है मलजा है, मावा है, यही दाता है, यही आका है, यही बद्दुहा चेहरे वाला है, वही वल्लैल ज़ुल्फ़ वाला है, यही माज़ाद आँख वाला है, यही काली कमली वाला है। सुनो, इस बच्चे को तुम नबी के सदक़े में बनी हुई जमीन पे चलना, नबी के सदक़े में नबी के सदक़े में मिली हुई चीजों को लेना देना, मगर नबी को अपनी तरह न कहना, नबी को बड़े भाई की तरह न कहना, नबी की शान को अल्लाह के शान के आगे चमार से ज्यादा जलील न कहना, नबी के इल्म गैब को, नबी के इल्म गैब को पागल मजनू बहाइम की तरह न कहना। मुझे देखो, मैं खाने काबा जब नबी की आमद हो रही है, तो मैं उस पैगंबर को, उस नबी को अपना किबला तस्वूर करके मैं झुक करके सजदा कर रहा हूँ। इसलिए नबी को आम नबी न समझना, बल्कि इमामुल अंबिया है। पता चला कि खाने काबा ने झुक कर एक दर्द दे दिया। एक दुनिया में रहने वालों, नबी की ताजीम से दूर न होना, नबी की इज्जत से दूर न होना, मगर कोई ना हंजार, कोई कमबख्त, कोई बदबख्त,
कोई बदनसीब ये कहे असलम रजा कादरी, मैं तो नबी को अपनी तरह कहूंगा, मैं तो नबी के बड़े भाई की तरह समझूंगा, मैं तो नबी के इल्म गैब को पागल मजनू बहन की तरह कहूंगा, मैं तो नबी की शान को अल्लाह की शान के आगे चमा से ज्यादा सलीम समझूंगा। वो गुस्ताखे रसूल से मैं कहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में इहानत करते करते जबान खामोश हो जाएगी, तुम्हारा कलम टूट जाएगा, मगर मुस्तफा की शान नहीं कर सकती, इसलिए कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा, फूकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।